اور آگے بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف. اگر آپ سحری کی ٹرانسمیشن نہیں دیکھی تو یوٹیوب پہ ضرور دیکھیے گا. آج کے دن کے حوالے سے بڑی لمبی ڈسکشن, بڑی خوبصورت باتیں, ایک ہم سب کی طرف سے ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے لیے. اور کوشش ہم سب کی یہی رہتی ہے کہ جیسے جیسے ہو سکے, جتنا ہو سکے اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں, بات کرتے رہیں. آپ کے حوالے سے کچھ واقعات, بڑے خوبصورت واقعات بھی یہاں پہ شیئر کیے گئے, اور آپ کی تعریف جس طرح بیان کی گئی. میں پہلے بھی جب میں انٹرو دے رہا تھا, میں اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میری مائیں بہنیں اگر اس چیز کو فالو کریں تو شاید زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ہمارے ساتھ اوبیسلی مفتی حنیف قریشی صاحب سحری پہ ہوتے ہیں, مفتی ابو محمد صاحب یہاں پر ہوتے ہیں, محمد علی شاہ صاحب ہمارے یہاں ساتھ ہوتے ہیں جب ہم سحری کی ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے عالم امین شہیدی صاحب یہاں پر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ مفتی نوید عباسی صاحب ہوتے ہیں, پروفیسر یونس صدیقی صاحب ہوتے ہیں, لیکن مفتی سبحان جو ہیں وہ اور قصوری صاحب جو ہیں یہ ہمیں صرف جوائن کرتے ہیں افطاری پہ. تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ رہتا ہے. میں چاہتا ہوں مفتی فضل سبحان صاحب کہ آپ سے آج کے اس وقت کا آغاز کیا جائے, کیونکہ یہ سب ویسے تقریباً حصہ ڈال چکے ہیں. آج یہ الگ پوائنٹ آف ویو سے کچھ اور بات کریں گے, لیکن اس طرح سے آپ بات شروع کیجئے. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر مجھے وقت دیتے ہیں. سحری میں نہ ہونے کا جو ایک کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج 3 رمضان المبارک, خاتون جنت, جگر گوشہ رسول, سیدۃ نساء اہل الجنہ, سیدۃ نساء العالمین, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رفیقہ حیات, جنتی جوانوں کی سردار کی ماں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ایک نہ خشک ہونے والا چشمہ اور نہ غروب ہونے والا آفتاب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دانشکدہ نبوت میں جس کی تربیت ہوئی اور بیت محمد میں جو پروان چڑھی, اس کی سیرت کے کیا کہنے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے 3 یا 5 سال پہلے ہوئی. 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا اور 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا. سخاوت, قیام اللیل اور تسبیحات فاطمہ امت کو ورثے میں ملی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت افضل, میں نے حضرت فاطمہ سے آقا کے بعد کسی کو افضل نہیں پایا. اور ایک موقع پر فرمایا ما رأیت احدن اشبہ سمتن و دلن و ہدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها. آقا سے زیادہ صورت اور سیرت, قیام اور قعود میں نے حضرت فاطمہ سے زیادہ مشابہت والا کسی کو نہیں پایا. ساری عورتوں کی سردار خدیجہ بنت خویلد اگر ماں ہے تو بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے. آقا نے جس کے بارے میں فرمایا ان اللہ یغضبک لغضبک, جس کی ناراضگی پر اللہ ناراض اور جس کی خوشی پر اللہ خوش ہوتے ہیں, فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کو ایذا دینا مجھے ایذا دینا ہے. جس لخت جگر کے بارے میں آقا نے فرمایا فدا کا ابی و امی, کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. بنو سلیم کا ایک آدمی مسلمان ہوا, آقا نے پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ کہنے لگا بنو سلیم کے 3000 لوگوں میں سب سے غریب میں ہوں. سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے, اپنی اونٹنی ان کو دے دی. آقا نے فرمایا اس کے سر کو ڈھانکنے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کھڑے ہوئے, امامہ اس کے سر پر رکھ دیا. آپ نے فرمایا اس کو کھانا کھلانے والا حضرت سلمان منا اہل البیت جس کے بارے میں الفاظ ہے, وہ کھڑے ہوئے اور مختلف گھروں میں پتہ کیا, کھانے کو کچھ نہ ملا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے در پہ آئے, کہنے لگی 2 دن کے فاقے ہیں, بچے بھوکے ہیں, لیکن مہمان خالی چلا جائے ہو نہیں سکتا. اپنی چادر دی, کہا شمعون یہودی کو دو کہ وہ تمہیں کچھ قرض دے. وہ شمعون یہودی کے پاس گئے, فاطمۃ الزہرا کی چادر پیش کی. اس نے کہا کہ اتنا بڑا ایثار, یہی وہ لوگ ہیں تورات میں جن کا ذکر ہے. چادر بھی واپس کی,
खाना भी दिया और कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद के बाप पर ईमान ले आया। फिर अल्लाहु हजरत अकबर। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के अल्लाहु पास अकबर। जब वो सहाबी आए और वो किस्सा सुनाया, वो सा पेश की, फौरन उस गंदुम को पीसा और उसको चक्की के तौर पर गंदुम के तौर पर जब आटा बनाया, रोटी बनाई, कहा जाकर मेहमान को खिलाओ, कहा अपने बच्चों को हसनैन करीमैन को तो खिलाए, कहा जो मेहमान के नाम पे आता है उसे हम नहीं खाते। फिर मुझे कहने दीजिए, ये बंदा बता रहा है एक बंदा उसूल का, अल्लाह अकबर, ये रुतबा जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का है, ये रुतबा बालाए ताक है, किसी की अकल में आ नहीं सकता। बागे बहिश्त के मैं और करीब हो गया, लब पे आया जो नाम मेरा जनाबे बुतूल का। थोड़ी तवज्जो आयत ततहीर की तरफ, इदराक थोड़ा उसके मकामे नुजूल का। बिनते रसूल वक्त के वली कामिल से है, रुतबा बुलंद तर तेरे कदमों की धूल का। और इजहार बुग़्ज़ ये आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद के बाब में कुफ़ार का तरीक़ा है, शेवा जहूल का, जन्नत की औरतों की सरदार है हज़रत फ़ातिमा। क्या मर्तबा है बाग़े मोहम्मद के फूल का, फ़हरिस्त अहले जन्नत है, दस्ते बुतूल में ये बेहतरीन वक्त है, इसमें शुमूल का। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब अगर हमारे सामने हो, हम उस पर अमल कर ले, ये हमारी निजात के लिए काफ़ी हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजल सुभान साहब, क्या बात है, क्या बात है। कुसरी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिगर गोशाए रसूल सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मत की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। अगर कोई बेटी है तो उसके लिए भी, अगर कोई बीवी है तो उसके लिए भी, अगर कोई माँ है तो उसके लिए भी। सैयदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं, जो दुनिया को ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाने और रंग और ढंग सिखाने के लिए आए थे। इस बेटी में अपने बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कामिल अक्कासी होती थी। उम्महातुल मोमिनीन एक जगह इकट्ठी बैठी हैं। सैयदा फ़ातिमा तशरीफ़ लाई। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके आने के अंदाज़ को इस तरह बयान किया, वल्लाहि मा तुख्तिउ मशयुहा मिन मशियति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, फातिमा के चलने का अंदाज हू बहू मिनो अन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था। बेटियों को चाहिए कि अपने बापों के साथ इसी तरह मोहब्बत और प्यार का इजहार करें। आप सुल्तानुल फुकरा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हैं, जो दरवेश मनश अल्लाह के वली, दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, घर में फ़क्र फाका की कैफियत होती, अपने हाथों से चक्की पीसा करती जिसकी वजह से हथेलियों में छाले पड़ जाते, अपने कंधों पे मशकीज़े उठा के लाती जिसकी वजह से नील पड़ जाते, अपने हाथों से घर में झाड़ू दिया करती जिससे लिबास गर्द आलूद हो जाता, लेकिन न कभी ज़ुबान पे हरफ़े शिकायत आई और न कभी पेशानी पे सलवटें उभरी। हर बीवी को ये चाहिए कि उसर युसर हर मौक़ियत माँ जब हम देखते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक दिन मुझे मेरी वालदा ने पूछा, हुज़ैफ़ा क्या सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो के आपको सलाम पेश किया करके आए हो? मैंने अर्ज़ किया, अम्मा जान ये सआदत हासिल नहीं कर सका। फरमाते हैं, फ़नालत मिन्नी, वालदा मायसा मुझसे नाराज़ हुई, मुझे सख्त सुस्त कहा। मैंने कहा, अम्मी जान मैं अभी आपकी खिदमत में हाज़िरी देता हूँ। मस्जिद की तरफ रवाना हुआ, मगरिब की आज़ान हो रही थी।
फसल्लैतु माहुल मगरिब, मैंने आपकी इक्तिदा में मगरिब की नमाज अदा की। सुन्नतें पढ़ने के बाद सोचा आपकी खिदमत में हाजिरी दे के सलाम पेश करता हूँ ताकि आपसे दुआएं हासिल कर सकूँ। आपने सुन्नतें अदा की, नवाफिल पढ़ना शुरू किए। इशा का वक़्त हुआ। इशा की नमाज से जब फारिग हुए तो मस्जिद नबवी से निकल के हुजरा अक़दस की तरफ रवाना हुए। मैं भी आपके पीछे पीछे चल पड़ा। आपने कदमों की आहट सुनी तो पूछा मन हाजा, कौन है? फिर खुद ही फरमाया क्या तुम हुज़ैफा हो? मैंने अर्ज़ किया जी मैं हुज़ैफा हूँ। फरमाया कद गफ़र अल्लाह लक वाले उम्मिक, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी वालदा की मग़फ़रत फरमाए। फिर फरमाया हुज़ैफा आज अभी फरिश्ता एक आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया। इस्ताज़ाना रब्बहू अन युसल्लिम अलैया, उसने रब से इजाज़त ली कि मैं आपके हबीब पे सलाम करना चाहता हूँ। वो इजाज़त लेके आया, उसने मुझे सलाम पेश किया और साथ ये खुशखबरी सुनाई इन्ना फातिमाता सैयदातु निसाए अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। फातिमातु ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह ने इन्हें जन्नत की सरदारी अता की है और इन्होंने अपने लखते जिगरों की इस तरह की तरबियत की कि अल्लाह ताला ने उन्हें शबाब अहले जन्नत बना दिया। कोई माँ है तो उसे चाहिए सैयदा फातिमा से रहनुमाई हासिल करते हुए अपने बच्चों की उस अंदाज में तालीम हासिल करे। नबी करीम का एक फरमान पेश करके बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलादु अलल फितरा फाबावाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो दीन फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। फिर उसके माँ बाप का किरदार शुरू होता है। अब वो उसे मुसलमान बनाए, ईसाई बनाए, यहूदी बनाए या आतिश परस्त मजूसी बनाए। तो सैयदा फातिमा ने इब्तिदा से ही अपनी औलाद को अल्लाह के रंग में रंग दिया था। बच्चे का ज़हन बड़ा सादा कागज की तरह साफ और उजला होता है, जो रंग चढ़ा दिया जाए वही उस पर सबत हो जाता है। आज माओं के लिए ज़रूरी है अब वो अपने बच्चों को इब्तिदा से ही अल्लाह के रंग में रंग दें। अल्लाह फरमाते हैं सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगा, जो बचपन में अल्लाह के रंग में रंग जाता है अब वो अपनी गर्दन कटवा तो सकता है लेकिन कभी गैर के सामने झुका नहीं सकता। और यही तौहीद है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खिफा फकत मेरे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में वो एक बात कोई सब थोड़ी सी लगी हुई थी। हम सहरी में जब कर रहे थे तो वो एक बड़ी खूबसूरत पेश की गई थी नात गालिबन, और उस पर फिर मुझे एक मैसेज भी आया था कि ये ज़रूर आप मुफ्ती साहब से पूछिएगा कि जनरली तो हम यही कहते हैं कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, लेकिन वो था कि वो जो थी कि फातिमा की चक्की से वो हाँ तो वो वाली बात जो थी उस पर उन्होंने वो थोड़ी मुझसे कहा कि ये ज़रूर सवाल पूछ लीजिएगा। ये मैं सबकी तरफ आऊँगा इस सवाल पे। जी देखें, हकीकी तौर पर कायनात का राज़िक खालिक मालिक अल्लाह है, इसमें किसी मुसलमान को कोई शक और शुबा नहीं है। ठीक है। लेकिन आले इल्म जानते हैं कि जब कभी कलाम किया जाता है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक उसका हकीकी पहलू होता है, एक उसका मजाजी पहलू होता है। हम अगर किसी को शेर कह देते हैं तो वो दुम वाला या पंजों वाला या कैनन्स वाला वो साबित नहीं होता, बल्कि उसकी एक वसफ वहाँ पर मुराद होती है। अब कुरान और हदीस में अल्लाह ताला की बेशुमार जो सिफ़तें ज़िक्र की गई हैं, उन सिफ़तों को अगर हम देखते हैं तो वो सिफ़ात आम बंदों के लिए भी हैं। मसलन रहमान और रहीम अल्लाह है, और इसी सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत में नबी पाक को रहीम कहा गया। अलीम अल्लाह है, आम बंदों को भी अलीम कहा गया। और इसी तरह रब अल्लाह है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र को रब कहा। और यूं ही कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है। और हम रोज़ कह रहे होते हैं इस प्लाट का मालिक कौन है, ज़मीन का मालिक कौन है, सर मैं मालिक हूँ। भाई तू किधर मालिक है, वो तो अल्लाह है। तो जब कोई मुसलमान बात करता है तो उस वक्त उसका हरगिज़ 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 मकसद ये नहीं होता
कि वो हकीकी तौर पर उन सिफात को किसी गैरुल्लाह के लिए वो साबित करता है। तो यहाँ मकसूद ये है कि असल तो कायनात के अंदर जो रिस्क है, वो रिस्क असल जो चीज़ है वो मारिफत इलाहिया है, बिल्कुल। वो असल दीन है। तो दीन का सारा हम जो समझते हैं कि जरिया वो दर फातिमा है, बिल्कुल। तो कायनात में वो जो चक्की से मुराद यही रोटी वाली चक्की नहीं है, चक्की से मुराद है नेमत इलाहिया, यानी कायनात में जो नेमत इलाहिया की तकसीम है उसका बड़ा जरिया सैयदा कायनात सैयदा फातिमा है। क्यों कि वो उसके जिगर का टुकड़ा है जो महबूब खुदा है और जो सबसे बड़ा कायनात के अंदर अल्लाह की रहमत और नेमतों का वसीला है। अल्लाह अकबर। इस वजह से हुजूर ने फरमाया जिससे फातिमा राजी हो उससे खुदा राजी होता है, जिससे फातिमा नाराज हो उससे खुदा नाराज होता है। बिल्कुल। तो ये मतलब है कि जिससे फातिमा राजी हो गई उसके लिए इल्म का दरवाजा खुल गया, जिससे फातिमा राजी हो गई उसके लिए विलायत का दरवाजा खुल गया, जिससे फातिमा राजी हो गई उसके लिए हिकमत का दरवाजा खुल गया। यानी अल्लाह की जो असल बड़ी नेमतें हैं वो सारी नेमतें रज़ाए फातिमा के जरिए से मखलूक में अल्लाह पाक उनको अता फरमाता है। ये मतलब है। इससे ये मतलब नहीं कि फातिमा ज़ारा चक्की चला रही हैं और लोग वहां से रोटी लेकर खा रहे हैं, इसका ये मतलब है। नहीं, मैंने कहा ये पूछना जरूरी है बिकॉज नहीं, लोगों अच्छा के है। सवालात आते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। इस तरह के, तो हमने कहा बिल्कुल। और शाह साहब मैं आपकी तरफ इसलिए आऊँगा क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है थोड़ा सा, और एक तो आज के हवाले से कुछ वज़ाइफ बताएं। और आज 25 मार्च है जी, पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक। आज हम 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।